ऑल राइट, तो देखो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिस्टर रोबोट सीज़न 1 से DDoS अटैक का एक सीन। एंड मेन जो हमारा टारगेट है वो हमें ये चीज़ समझना है कि आखिर रूट किट क्या होती है। तो एक बार हम डायरेक्टली वो सीन देखेंगे एंड देन हम चैट जीपीटी से ही पूछेंगे कि रूट किट क्या होती है। एंड देन और प्लेटफॉर्म पे हम ये चीज़ चेक करेंगे कि रूट किट और रैट में डिफरेंस क्या होता है। तो डायरेक्टली हम इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सीज़न 1 से एक सीन है। डायरेक्टली मैं इसको प्ले करता हूँ एंड हम चेकआउट करते हैं इसको। Finally. Calm down. It's only been an hour. Yeah, well, an hour in Evil Corp's time is like $13 million in revenue, approximately. Actually, I calculated that. That's exactly how much they lost. Don't worry. I got you. Lloyd, what's up? Lloyd. Elliot, this is bad. Worst DDoS attack I've ever seen. Reconfigure the DNS? Yes. Stop. ओके तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक डीडोस अटैक हुआ है, हमें ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया है एंड जो चीज़ें हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहा लॉयड। तो इसको हम एक बार आगे कंटिन्यू करते हैं। Services. I already stopped the services, tried to reboot the servers, but they're not coming back up. Dude, someone is straight up finger blasting their entire network. देख सकते हो आपकी नेटवर्क अनरीचेबल आ रहा है, वो बार बार ट्राई आउट कर रहा है बट स्टिल जो पिंग्स हैं वो वहाँ पर नहीं जा पा रही। तो इसको हम Right now. बार बार आप देख सकते हो सेम वही चीज़ है कि एक्सेस डिनाई हो रहा है या फिर सर्वर सही से काम नहीं चल रही। बेसिकली क्या हो रहा है कि मल्टीपल जगहों से अटैक हो रहे हैं एक ही जगह पर। They just started reporting on the outage. Shit, this is worse than I thought. They're in the network. What's the status update? You see, I thought we set up security protocols so that this doesn't happen. Where's the attack coming from? Everywhere, obviously. USA, Finland, Thailand, Kuwait. Start restarting the services, load sharing, redirect the traffic, and call Prolexic for help. Wait, what? I don't think this is just a DDoS attack. I think they got a rootkit sitting inside the server. ओके तो यहाँ पर सबसे पहली बार रूट किट का मेंशन किया गया है। तो एलियट यहाँ पर ये चीज़ बताता है कि क्या पता ये सिर्फ एक डीडोस अटैक ना होकर इसमें एक रूट किट डली हुई हो, सर्वर में जो रूट किट है वो इंस्टॉल्ड हो। तो इसी को अभी हम चेकआउट करेंगे। What's a rootkit? It's like a crazy serial rapist with a very big dick. Jesus, Lloyd. Sorry, it's malicious code that completely takes over their system. It can delete system files, install programs, viruses, worms. How do we stop it? That's ओके तो लॉयड ने यहाँ पर रूट किट के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन दी है। इस डेफिनेशन को हम आगे चेकआउट करेंगे। चैट जीपीटी हमें क्या बताता है जब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि आखिर एक रूट किट क्या होती है। thing. It's fundamentally invisible. You can't stop it. All of their servers are timing out. None of them are coming back up. It's because every time we restart a server, the virus replicates itself during boot up and crashes the host. How are we supposed to bring up the network if we can't restart the servers? We can't. Which is what they wanted. By defending ourselves, we ended up spreading the virus everywhere. Only thing we can do is we gotta take the whole system offline. Wipe the infected servers clean, then bring them back up. You're coming with me. Yeah. Lloyd? ओके तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये उस जगह पर जाने वाले हैं जाके सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं जिस जगह पर, एंड सर्वर्स को ऑफलाइन करके ये क्या करने वाले, ये बेसिकली वाइप आउट करेंगे मैलवेयर को अगर वहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक रूट किट है जिसको यहाँ पर ये क्लीन करेंगे। Tell everybody to start taking everything offline. On it. The server farm in Dulles. We're gonna need the jet. वही जैसे मैंने अभी बताया था, ये बेसिकली अभी उस जगह पर गए हैं जहाँ पर सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, सर्वर रूम में ही। यहाँ पर जाकर अभी ये चीज़ों को चेकआउट करने वाले हैं। They're putting the network back up. Now, you're downloading the logs, right? Because we Stop. Tell them to stop. What?
Don't start the boot sequence. You guys missed one. There's an infected server up and running. ओके तो CS30 मोस्ट प्रोबेबली एक इन्फेक्टेड सर्वर है. इन्फेक्टेड सर्वर का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर इस सर्वर के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली एक रूट किट इंस्टॉल्ड होगी एंड इसी सर्वर की वजह से हैकर्स क्या कर पा रहे हैं, वो दूसरे सर्वर्स का भी एक्सेस ले पा रहे हैं. ठीक है, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर नेटवर्क में एक डिवाइस हैक हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि वो डिवाइस दूसरे डिवाइसेस को भी मतलब इन्फेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पर एक बार हम इस चीज़ को चेकआउट करते हैं. What's the ETA before it hits this server? The backup server up and running? It's ready, but it's not configured for auto switch. Need to redirect the traffic. Need to switch DNS. You got this. You got this. You got this. This is impossible. You got this. You got this. You got this. It's almost in the bad server. We still up? ओके तो मोस्ट प्रोबेबली अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इन्फेक्टेड सर्वर था, ट्रैफिक अब उसके थ्रू नहीं जा रहा. ट्रैफिक बेसिकली अभी जा रहा है दूसरे सर्वर से. आई थिंक CS30 यहाँ पर इन्फेक्टेड सर्वर था. अब जो ट्रैफिक है वो उसके थ्रू ट्रैवल नहीं हो रहा. ठीक है, एंड जो रूट किट एग्जिस्ट करती है वो हमारे CS30 में ही मिलेगी ज़रूर. We're okay. Yeah. ओके तो बेस काम यहाँ पर हो चुका है. मोस्ट प्रोबेबली अब वो रूट किट को हटा देंगे एंड सीन यहाँ पर ही I'm gonna कट take a हो look at जाना the चाहिए. infected server, okay? Give me a minute. Yeah. ओके तो यहाँ पर बेसिकली वो इन्फेक्टेड सर्वर को चेकआउट करते हैं एंड प्रॉपर फिर आगे सीरीज कंटिन्यू होती है. पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम इस सीन से सीख क्या सकते हैं. एक तो हमें DDoS के बारे में पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे बोर्ड्स डायरेक्टली एक सर्वर पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो सर्वर ऑफलाइन हो जाता है या फिर उसके ऊपर लोड इतना बढ़ जाता है कि वो सर्वर सही से काम नहीं कर पाता. बट अभी यहाँ पर हम रूट किट के बारे में समझेंगे जिस टर्म के बारे में मेंशन किया था लॉयड ने या फिर एलियट ने. तो ChatGPT से मैंने ऑलरेडी पूछ रखा है कि आखिर एक रूट किट क्या होती है, व्हाट्स अ रूट किट. तो ChatGPT के हिसाब से क्या है कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि जो हमारा कंप्यूटर है ना या प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं लाइव, उनको पता नहीं चलता कि उनके सिस्टम को कोई थर्ड पार्टी भी एक्सेस कर सकती है. अब जो रूट किट्स है वो एक कंप्यूटर में डाले जा सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से. हो सकता है कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो, उसको एक्सप्लॉइट करके रूट किट डाली गई हो, या फिर कोई हमने ऐसा सॉफ्टवेयर ही डाला हो, सॉफ्टवेयर के साथ ही रूट किट बंडल की गई हो. मतलब जब हमने वो सॉफ्टवेयर डाला रूट किट भी उसके साथ ही डल गई, या फिर किसी ने कंप्यूटर या सर्वर का फिजिकल एक्सेस लिया एंड वहाँ से रूट किट को इंस्टॉल किया. अब अगर एक बार रूट किट डल गई ना तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज जो रूट किट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लो लेवल पर भी एक्ट कर सकती है. इट कैन ऑपरेट एट अ लो लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है. अब रूट किट्स के बारे में आगे क्या बताता है, दे कैन बी यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर. वही बात कि रूट किट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपका कंप्यूटर हैक करना है एंड मैंने आपके कंप्यूटर में किसी तरीके से एक रूट किट डाल दी, तब मैं आपके कंप्यूटर को कभी भी चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ. फिर हम यहाँ पे उसी चीज़ की मदद से इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी करनी हो तब वो भी हम रूट किट्स की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसी वजह से हमारे पास कोई ना कोई एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एंटी मैलवेयर या एंटीवायरस ज़रूर होना चाहिए ताकि हम रूट किट्स या अगर इसके अलावा कोई और भी टाइप के मैलवेयर्स हैं उनसे बच सके. अब रूट किट से एक सिमिलर टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं रैट. रैट को आप बैकडोर भी बोलते हो या फिर रिमोट एक्सेस टूल भी बोलते हो. तो अभी हम ज़्यादा डिफरेंस के बारे में नहीं जानेंगे, हम सिर्फ दोनों टर्म्स के बारे में रीड करेंगे कि आखिर superuser.com या फिर स्टैक एक्सचेंज पर क्या दिया गया है. तो यहाँ पर कहता है रूट किट के बारे में कि इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैलवेयर विच इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली टू हाइड इट्स प्रेजेंस.
रूट किट बनाई ही इस वजह से जाती है ताकि उसको छुपाया जा सके, and actions from both the user and any existing protection software they have installed on their system, कि अगर उन्होंने कोई एंटी malware सर्विस भी डाल रखी है तो उससे भी उसको छुपाया जा सके. It's able to do this via deep integration with the operating system. ये किस तरीके से किया जा सकता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं छुप जाता है. समटाइम्स इवन स्टार्टिंग बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम डज. कुछ रूट किट्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर. अब कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनको डिटेक्ट कर लेते हैं, एंड डिटेक्ट करने के बाद वहाँ से इनको रिमूव भी किया जा सकता है. पर यहाँ पर क्या है कि कुछ एंटीवायरसेस, ठीक है, अगर आप खुद की रूट किट बना लेते हो और उसका सिग्नेचर अगर अवेलेबल नहीं है तब मोस्ट प्रोबेबली वो जो भी वो रूट किट है वो अनडिटेक्टेबल होगी. सिमिलरली एक और भी सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है, या आप बोल सकते हो एक टूल एग्जिस्ट करता है जिसको हम बैकडोर या फिर रैट बोलते हैं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल या फिर रिमोट एक्सेस टूल. अब ये इस तरीके का एप्लीकेशन है जिसमें एक क्रिमिनल या फिर एक पर्सन किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है विदाउट यूज़र नॉलेज या फिर कंसेंट. मतलब आपके सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए जो कि आपको पता भी नहीं है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, एंड उसकी मदद से एक हैकर कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है. अब रैट अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक अटैकर आपके सिस्टम के साथ क्या क्या कर सकता है. अगर वहाँ पर सिर्फ की लॉगर है तब वो आपके कंप्यूटर में ये चीज़ ट्रैक कर सकता है कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हो. अगर वहाँ पर कैमरा एक्सेस करने की फंक्शनैलिटी है तब वो आपका कैमरा, माइक्रोफोन वो तक एक्सेस कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड इवन कि वो आपका माइक्रोफोन जब ऑन ऑफ करना चाहिए, कैमरा जब ऑन ऑफ करना चाहिए, आपके सिस्टम से फाइल्स अगर लेना चाहिए वो फाइल्स भी डाउनलोड कर सकता है. अगर वो आपके कंप्यूटर की एक्टिविटी को लॉक करना चाहिए तब भी आप वो चीज़ कर सकता है. तो आज हमने मिस्टर रोबोट से एक सीन देखा, बहुत बेसिक सी चीज़ थी. हमने DDoS अटैक का यहाँ पर एक सीन देखा, रूट किट के बारे में जाना. रूट किट के बाद हमने रूट किट और बैकडोर वाली टर्म को समझा. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. मिस्टर रोबोट से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं हिंदी में हैकिंग से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स को समझाने वाला हूँ, अलग अलग टूल्स को समझाने वाला हूँ जो भी मिस्टर रोबोट में यूज़ हुई हैं. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं एक और वीडियो में. सो बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.